بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام منور حسین ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک فوجی آفیسر ہوں اور میری زندگی کا یہ واقعہ آپ کی سوچ میرے بارے میں یقیناً بدل دے گا۔ یہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بس میں سفر کر رہا تھا۔ اسی بس میں میرے استاد محترم بھی موجود تھے۔ میں تقریباً 3 ماہ کی ڈیوٹی کے بعد چھٹی پر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ میں آج بہت خوش تھا کیونکہ ماں سے ملنے کی خوشی میرے چہرے سے ہی چھلک رہی تھی۔ جس بس میں سوار ہوا تھا اس میں کوئی عورت نہیں تھی، تقریباً سبھی مرد حضرات تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر شاید اس کی کوئی رشتہ دار خاتون بیٹھی ہوگی۔ بس کا ماحول خواتین کی غیر موجودگی میں کچھ مختلف تھا۔ کافی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس بس میں اکثر لوگ ہمارے گاؤں کے ہی تھے کیونکہ یہ بس سیدھا ہمارے گاؤں جاتی تھی۔ باقی لوگ بیچ میں آنے والے اسٹیشنز پر اترتے تھے۔ بس چلنے ہی والی تھی۔ تقریباً تمام مسافر آ چکے تھے کہ کھچا کھچ مسافروں سے بھری اس بس میں اچانک ایک عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو یقیناً اس کی بیٹی ہوگی۔ اس عورت نے بس میں داخل ہوتے ہی روایتی بھکارنوں والا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ صاحب جی میری مدد کریں، میری بچی یتیم ہے، اسی کے لیے آپ لوگوں سے مدد مانگنے آئی ہوں، ورنہ میں تو بھوکے پیٹ بھی رہ لوں۔ اس کی گریہ وزاری سن کر مجھے دل میں ہنسی آ گئی۔ اس عورت کا حسن دیکھ کر کہیں سے بھی یہ خستہ حال نہیں لگتی تھی۔ بڑے قد کاٹ والی عورت تھی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی، جبکہ ہاتھوں کی انگلیوں میں 1-2 انگوٹھیاں بھی پہن رکھی تھیں۔ غرض چہرے مہرے سے کہیں سے بھی کسی غریب گھرانے کی نہیں لگتی تھی، جبکہ اس کے مطابق یہ اس کی یتیم بچی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ اسی کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ ایسی عورتیں مجھے بہت بری لگتی تھیں جو اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر مردوں سے ہمدردیاں سمیٹتی تھیں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ خیر میں نے دل میں کچھ سوچا اور اس سے پوچھا، خاتون کیا تم واقعی بیوہ ہو اور تمہاری یہ بچی یتیم ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتنے میں ساری بس کے مسافر ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے پراعتماد ہو کر اس سے اگلی بات پوچھی، اگر تم واقعی بیوہ ہو تو میں تمہیں نکاح کی پیشکش کرتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تم یہ بھیک مانگنا چھوڑ دو گی۔ میں نے 100% اس بات پر یقین رکھ کر اس عورت سے یہ بات کہی تھی کہ یہ کسی بھی صورت میں مجبور نہیں لگتی، اور واقعی اس کا چہرہ کسی کھلتے ہوئے گلاب کے جیسا تھا۔ مگر میری توقع کے برخلاف اس نے میری بات پر خاتون کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ سر جھکا کر بولی، مجھے منظور ہے، اگر آپ جیسا نوجوان مجھ سے نکاح کرے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ عورت کا لہجہ اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ واقعی کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی۔ اب تو سبھی لوگ دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگے، جبکہ میں حیرت زدہ سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ یوں نکاح پر راضی ہو جائے گی۔ مجبوراً میں کیا کرتا۔ میں نے اپنے استاد محترم کی جانب دیکھا تو ان کے چہرے پر کسی قسم کا اضطراب نہیں تھا، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ خیر اب میں کیا کر سکتا تھا، اپنی ہی بات کے جال میں پھنس گیا تھا۔ استاد محترم نے میرا نکاح بس میں ہی اس عورت سے پڑھوا دیا۔ اب وہ اس سفر میں میری ہمسفر بن چکی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بچی کو اپنا نام دوں گا۔ نکاح کے بعد سبھی لوگوں نے دعا بھی کی، جبکہ میں نے مریم کو اپنے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ بس میں موجود سبھی لوگوں کی نگاہوں میں ایک رشک آمیز عزت تھی۔ میرے استاد محترم نے میرے اس قدم کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ ہمارے گاؤں سے پہلے ایک قصبہ پڑتا تھا جہاں پر ڈاک خانہ بھی تھا اور دیگر ضرورت کی چیزیں بھی وہیں میسر تھیں۔ میں اکثر گاؤں جانے سے پہلے رات کو یہاں پر رکا کرتا تھا۔ ایک ہوٹل والا مجھے جانتا تھا اور جب بھی میں یہاں آتا میری خوب توازو کرتا تھا۔ آج مگر میں اکیلا نہیں آیا تھا، میرے ساتھ مریم اور اس کی بیٹی بھی تھی۔ اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے مریم اور اس کی بیٹی کو اپنانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل میں سکون تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں نے ایک بیوہ اور بے سہارا عورت کو سہارا دیا ہے۔ خیر میں نے ہوٹل والے سے بات کی اور کہا کہ آج رات میں یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ اسے بتایا کہ میں شادی بھی کر چکا ہوں، جس پر اس نے مجھے مبارکباد بھی دی۔ استاد محترم بھی میرے گاؤں سے ملحقہ اسی قصبے کے پاس رہتے تھے، وہ بھی دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے تھے۔ رات کا وقت ہونے والا تھا۔ میں اور مریم اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس کی بچی کو میں نے خوب پیار کیا اور کہا، اب تم مجھے اپنا بابا سمجھو، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ میں تمہیں لا کر دوں گا۔ بچی ابھی ناسمجھ تھی۔ ہم دونوں کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی ہنسنے لگی۔ میں نے مریم سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ اس کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، مگر خاندانی دشمنی کی وجہ سے، مگر اس کا خاندان، ماں باپ اور سسرال
खानदानी दुश्मनी की नज़र हो गए। जो कुछ बचा था वो सब छोड़ छाड़ कर निकल खड़ी हुई, क्योंकि गांव में उसकी इज्जत को खतरा था। सो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आ गई। यहाँ आकर भी दर बदर फिरती रही, बसों वगैरह में भीख मांगकर गुजारा करती थी। अपने गांव वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मरियम के भाई पर बड़ा ही घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके बदले में गांव में यही रिवायत चली आ रही थी कि उस घर की औरतों की इज्जतों को नीलाम किया जाता था। मरियम का शौहर भी इसी दुश्मनी की नज़र हो गया था और ऐन मुमकिन था कि वो लोग मरियम को अपना शिकार बनाते। मैंने मरियम को तसल्ली दी कि अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की इज्जत अब महफूज है। मरियम की आंखों में मेरे लिए ममनूनियत थी। उस रात मैंने उससे ढेर सारी बातें की, जबकि उसकी बेटी जल्द ही सो चुकी थी। उस छोटे से कमरे में गुजरी वो एक रात मुझे आज भी नहीं भूलती। हालात की सितम ज़रीफियों ने भी मरियम के चेहरे के खदुखाल पर कोई असर नहीं डाला था। उसकी बातों में मोहब्बत की खुशबू थी और चेहरे पर ऐसी ताजगी कि मेरी नज़रें उसके चेहरे से न हटतीं। उसका किरदार और इखलाक हर लिहाज से आला था। उसे शरीके हयात बनाकर मैं अपने दिल में एक खुशी सी महसूस कर रहा था। सुबह के तकरीबन 4 बजे थे। मैं नमाज की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने होटल का मालिक खड़ा था। कहने लगा, मुझे अभी किसी ज़रूरी काम से जाना है। दरअसल आपके घर वालों ने मुझे एक ख़त दिया था कि मैं आपको पोस्ट कर दूं, मगर अब तो आप आ ही गए हैं तो सोचा कि ये ख़त आपको ही दे दूं। दरअसल मुझे जल्दी सफ़र को जाना है, इसलिए आपको ये ख़त अभी देना पड़ रहा है। मशकूर भाई ने वजाहत की तो मैंने ख़त उनके हाथ से ले लिया और उनका शुक्रिया अदा करके अंदर आ गया। नमाज अदा करके मैंने ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया। ये ख़त यकीनन अम्मा ने छोटे भाई से लिखवा कर भिजवाया था, मगर ख़त की सतरें पढ़ते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मेरे चेहरे पर बदलते तासुरात को मरियम भी देख रही थी। ख़त में अम्मा ने लिखा था कि इस माह मुझे जब भी छुट्टी मिले मैं जल्दी घर आ जाऊं, क्योंकि उन्होंने खाला की बेटी से मेरी मंगनी पक्की कर दी है और अब मेरे घर आने पर मेरी शादी होगी। वो भी क्या ज़माने थे, माँ बाप अपने बच्चों से पूछे बिना ही उनकी मंगनी और शादी तक तय कर देते थे। ख़त पढ़कर पहले तो शायद मुझे खुशी होती, लेकिन अब जबकि मैं मरियम से निकाह कर चुका था तो इस खबर ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने ये ख़त पढ़कर मरियम को सुना दिया। अम्मा के अल्फाज सुनकर मरियम भी परेशान हो गई। जानती थी कि गांव के रस्म रिवाज क्या होते हैं। तभी उसने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं मुनव्वर, मैं तो पहले भी मांग कर खाती थी, अब भी ऐसे ही गुजारा कर लूँगी। मेरी खातिर आप अपने घर वालों से दुश्मनी ना मोल लेना। मेरा क्या है, मैं तो बेसहारा ही थी, बस आपके नाम के साथ जुड़ी रहूँगी तो ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। बस मुनव्वर, कभी मेरे नाम से अपना नाम मत हटाना। इतने अरसे बाद तो मैंने सुख देखा है। मरियम की आंखों से छलकते आंसू जैसे मेरे दिल पर गिरे थे। क्या बात कर दी मरियम, अब तुम मेरी बीवी होकर लोगों से मांगती फिरोगी? मैं ऐसा हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने गांव लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूँ माँ बाप मुझसे खफा होंगे, अब्बा मारेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, शायद तुम्हें भी बहुत कुछ कह सुना दें, मगर तुम भी सुन लेना, इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं और वैसे भी अब तुम मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। हालात का सामना करने से मैं नहीं घबराता। मैंने मरियम से कह तो दिया, मगर आगे आने वाले हालात के बारे में नहीं सोचा। मरियम मेरे कहने पर मुतमईन हो गई। वो बहुत खुश लग रही थी। खैर, सुबह के 8 बजे मैं मरियम को लेकर अपने गाँव रवाना हो गया। गाँव जाते हुए मरियम मुझसे रास्ते भर में बातें करती रही। वो बहुत ही मासूम शख्सियत की मालिक थी, जबकि उसकी बेटी मुझे एक ही दिन में बहुत प्यारी लगने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे ही वजूद का हिस्सा हो। मैंने उसे काफ़ी खिलौने वगैरह भी लेकर दिए। बातों बातों में पता ही न चला कि कब मेरा गांव आ गया। हम गाड़ी से उतरे तो एक मस्जिद के पास रुक गए। मरियम मस्जिद की दीवार को छू कर दुआ मांगने लगी। वो मुझे भी देख रही थी और फिर आंखें बंद करके दुआ मांगती। उसका अंदाज मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने कहा, मरियम, इतने वसूख से क्या मांग रही हो? कहने लगी, अल्लाह से आपका साथ मांग रही हूँ। अल्लाह ना करे कभी मेरा नाम आपसे अलग हो। जिंदगी कभी कभी इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर जाती है। आपका साथ एक ख्वाब जैसा है, खुदा करे ये ख्वाब कभी न टूटे। उसने कहा तो मैंने आमीन कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं अम्मा अब्बा एक गैर लड़की को मेरे साथ देखकर क्या कुछ कहेंगे, मगर अब हालात को सहना ही बहादुरी थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा दौड़कर मेरे गले लग गईं, मगर जैसे ही अम्मा ने मरियम को देखा
तो जैसे उन्हें करंट लग गया हो। उन्होंने मरियम की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है पुत्र, और तू इसे अपने साथ क्यों लाया है? अम्मा की आंखों में लाख सवाल और अंदेशे थे। मैंने सर झुका लिया तो अम्मा ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। बोलता क्यों नहीं, कौन है ये, कहाँ से लाया है? मैंने धीमे से आवाज में जवाब दिया, अम्मा ये तेरी बहू है, अब से इसी घर में रहेगी। निकाह किया है अम्मा, ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उन्होंने तो पहला निकाह बेवा से ही किया था ना। मैंने मजहब का सहारा लेते हुए अम्मा को कायल करने की कोशिश की, मगर उनका दीन ईमान शायद अब्बा का हुक्म था। मुझे झिंझोड़ते हुए कह रही थी कि मैं अब्बा के आने से पहले इस लड़की को घर से भगा दूं, वरना अब्बा घर आकर मेरा वो हशर करेंगे कि सारा गांव देखेगा। मैंने अम्मा की बात की परवाह नहीं की और मरियम को अपने कमरे में ले आया। मरियम की बेटी सिद्रा खासी घबराई हुई लग रही थी। शायद वो अम्मा की डांट से सहम गई थी, अपनी माँ से चिपक कर बैठी हुई थी। मैं मरियम को अपने कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। गांव के कुछ कुछ घरों को मेरी शादी का पता चल चुका था, क्योंकि जिस गाड़ी में मैं मरियम को लेकर आया था उसमें काफ़ी सारे लोग मेरे गांव के भी मौजूद थे। खैर, मैं अपने दोस्तों यारों से मिला, कुछ को ये बात बताई और कुछ से छुपा गया। सोचा था कि पहले अब्बा वाला मसला हल हो जाए, फिर सभी को बता दूंगा। खैर, शाम को अब्बा आ गए। मैं उन्हीं के इंतज़ार में था, मगर उनके सामने जाने से डर रहा था। अब्बा गुस्से में बिफरे हुए घर आए थे। उन्हें शायद पता चल चुका था कि मैं अपनी मर्जी से अपनी शादी कर चुका हूँ। वो सीधा मेरे कमरे में आ गए। अम्मा भी उनके पीछे पीछे आ गईं। आते ही अब्बा ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझे इससे कोई मसला नहीं था, मैं सर झुकाए खड़ा था, मगर फिर अब्बा ने वो बात कह दी जिसने मेरे पाँव में जंजीरें बांध दी। अब्बा उल्टी गिनती गिनने लगा और कहा, अपनी इस छोरी को तलाक दे दे, वरना मैं तेरी माँ को तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे कदमों में बैठ गई, अपने सर से दुपट्टा उतारा और मेरे पाँव में डाल दिया। मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों मेरे सर से छत छीन रहा है? क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था कि तू मुझे इस उम्र में घर से बेदर कर दे? अम्मा के आंसू मेरे जूतों पर पड़े तो मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने जहन्नुम की तपती आग में डाल दिया हो। किस कदर बदनसीब बेटा था मैं, जिसके कदमों पर उसकी माँ, जिसने उसे इस कदर मेहनत से पाला था, वो अपने आंसू गिरा रही थी। मेरा सर शर्म से झुक गया। अब्बा की उल्टी गिनती 2 पर पहुंच गई। जब ही अम्मा को कशी आ गई और वो गिर पड़ी, मगर अब्बा की गिनती न रुकी। मैं हैरत से उनके चेहरे को देख रहा था। किस कदर सफाक इंसान है। जिस औरत ने इतने साल अब्बा की खिदमत की थी, उसकी मौत ने उसके दिल पर दस्तक दी थी, मगर अब्बा की जिद पर कोई असर नहीं हुआ। बिलाखिर ना चाहते हुए भी मैंने अपने मुंह से वो 3 लफ्ज़ अदा किए और मरियम को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मैंने उसे आज़ाद कर दिया था। मरियम की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं किस मुंह से मरियम की तरफ देखता? उसे कितने वादे करके अपने घर लाया था, कितने यकीन से उसे मैंने कहा था, मरियम तुम मेरी इज्जत हो, तुम्हें कभी रुल्ले नहीं दूंगा। अब्बा कमरे से जा चुका था। मैं अम्मा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। खुदा का शुक्र था, मैंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर अपनी जन्नत को बचा लिया था। अम्मा के गले लगकर मैं खूब रोया था। अम्मा भी मेरी बेबसी समझती थी। वो तो अब्बा के कहने पर ही ऐसा कर रही थी। इस बात से मैं वाकिफ़ था, क्योंकि मेरी माँ इतनी सख्त दिल नहीं थी कि किसी औरत का घर उजाड़ती। मरियम को देखे बिना ही मैं घर से निकल गया। मेरा रुख सीधा अपने उस्ताद मोहतरम के घर की जानिब था। मैं उनके घर पहुंचा, उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। मेरी बात वो भी समझ गए थे। मैंने कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आप मरियम को कुछ दिन अपने साथ रखें तो फिर मैं उसके लिए कोई बंदोबस्त कर लूँगा, या आप उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दीजिएगा। उस दिन मैंने अम्मा के साथ मरियम को उस्ताद जी के घर रवाना किया। उनसे पहले इस सिलसिले में बात हो चुकी थी। मरियम किसी लाश की तरह चलती हुई मेरे घर से गई थी। इस वाक़े के गुजरने के बाद अब्बा मुझसे काफ़ी नाराज़ रहे। खैर, उन्होंने मेरी शादी अपनी पसंद से कर दी। मैंने भी उनकी पसंद के आगे सर झुका दिया। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब मैं मरियम को बाकायदा खर्चा भिजवाता था। अक्सर कस्बे से आते हुए मैं उसके लिए कोई न कोई चीज़ भी ले आता। उसकी बच्ची के लिए खुसूसन खिलौने लाता। अब भी मैं जाता तो वो मुझे दौड़कर गले मिलती थी। शायद वो नहीं जानती थी कि क्या से क्या हो चुका है। वो मुझे अब भी अब्बा कहती थी, जबकि उस्ताद जी ने मुझे कुछ दिन बाद खबर दी कि उनका एक रिश्तेदार है जो मरियम से निकाह सानी करने पर राज़ी है। गांव में कोई भी उसे रिश्ता देने पर राज़ी नहीं था, क्योंकि उसका कोई एक ठिकाना तो था नहीं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा था,
मगर अभी तक बेरोजगार था। सभी अपने अपने घरों के हो गए, मगर राशिद का कोई घर बार नहीं था। ऐसे में उसे लड़की कौन देता? उस्ताद मोहतरम ने उसे मरियम से निकाह के बदले में ये घर देने पर भी रजामंदी जाहिर की थी। उसे और क्या चाहिए था? घर और घर वाली दोनों ही मिल रहे थे। ये मैं ही जानता हूँ कि किस दिल से मैंने मरियम को राशिद के निकाह में दिया था। उस दिन मेरे दिल पर जैसे गहरी चोट लगी थी। मैं उस दिन भी बहुत रोया था। हालांकि मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, मगर मरियम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत थी। खैर, अब क्या हो सकता था? वक्त और हालात ने हमें मजबूर कर दिया था। राशिद का निकाह मरियम से होने के बाद भी मैं मरियम के लिए हमेशा कुछ न कुछ भिजवाता रहता, बल्कि अक्सर छुट्टी से वापसी पर उन्हीं के घर की तरफ से आता था। ये रात का वक्त होता था, लिहाजा किसी को भी ये खबर न होती कि मैं मरियम के घर आता जाता हूँ। राशिद से मेरी मुलाकात और बातचीत होती रहती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। मेरे भी 1-2 बच्चे हो गए। मैं अल्लाह के फजल से अपनी ज़िंदगी में मगन था, जबकि मरियम की अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। उसके लिए उसकी बेटी ही कुल कायनात थी। खैर, मैं कभी कभार मरियम के घर जाता तो उसकी बेटी मेरे सामने न आती। अब वो तकरीबन जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। मरियम के घर में मैं राशिद और उसकी बेटी से ही मिलने जाता था। अब वो भी सामने न आती तो मैं भी ज़रा कम ही जाता था। एक बार ईद के दिन करीब थे, मुझे वक्त से ज़रा पहले छुट्टी मिल गई थी। मैंने मरियम की बेटी के लिए कुछ चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह खरीदी थी। ये रमज़ान की शायद 28वीं शब थी। मुझे अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। मैंने सोचा मरियम की तरफ से ही जाऊँगा ताकि उसकी बेटी के लिए ये तोहफे तहाइफ देता जाऊँ। खैर, आड़े तिरछे रास्तों से होता हुआ मैं मरियम के घर के करीब पहुँच गया। घर के सामने अमूमन कुत्ता बंधा होता था, सो मैं घर के पीछे वाली राहदारी से जा रहा था कि अचानक मुझे किसी आवाज़ ने चौंका दिया। ये घुटी घुटी चीखों और सिसकियों की आवाज़ थी जिसने मुझे चौंका दिया। मेरी फौजी फितरत थी, अक्सर मामलों में मेरा अंदाज तफ्तीशी ही होता था। मैं रुककर वो आवाज़ सुनने लगा। गौर किया तो वो आवाज़ इसी घर की खिड़की से आ रही थी। यकीनन ये मरियम की आवाज़ नहीं थी और ना ही उसके रोने और चीखने का कोई जवाब बनता था। जाहिर है वो अपने घर में क्यों चीखती चिल्लाती। मैं बिना सोचे समझे जल्दी से भागता हुआ घर के सामने आ गया। मुझे देखकर कुत्ता भी भौंकने लगा था। खुदा जाने उस वक्त मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैंने बड़ा सा पत्थर दरवाजे पर मारा तो दरवाज़ा धड़ाम से टूट गया। शायद चौखट कच्ची थी। दरवाज़ा खुलते ही मरियम की बेटी सिद्रा मेरे गले से आ लगी, जबकि राशिद अपने वहशतज़दा चेहरे के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे भागने नहीं दिया, उधर ही उसे धर लिया और मार मार कर आधमुहा कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं उसे जिंदा कब्र में गाड़ देता। मैंने सिद्रा को तसल्ली दी और पूछा, मरियम कहाँ थी? कहने लगी, पता नहीं अब्बा अम्मा को क्या खिलाते हैं। इफ्तारी के बाद उनकी आंख नहीं खुलती। अम्मा जब सोती है तो अब्बा मेरे कमरे में आ जाता है। पहले तो बातें ही करता था, मगर आज तो उसने हद कर दी। सिद्रा मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर मैं भी रोने लगा। किस कदर शर्म की बात थी। रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में हलाल छोड़कर हराम की लत में पड़ा था और एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। इस वाक़े ने मुझे हिला कर रख दिया था। अब्बा तो फौत हो चुके थे, अम्मा भी अब पहले जैसी नहीं रही थीं। राशिद से मैंने मरियम को तलाक दिलवा दी और उसे अपने अक़द में ले लिया। मैं नहीं चाहता था कि अब मरियम मज़ीद दुख बर्दाश्त करे। काश ये हकीकत मुझे पहले मालूम होती तो मैं राशिद के साथ उसका निकाह ही न करता। मुझे क्या खबर था कि राशिद अपनी ही बेटी पर ऐसी नज़र रखेगा। मुझे आज उन दिनों का भी अफसोस है जो मरियम ने राशिद के घर में गुजारे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस गलती के लिए वो मुझे माफ़ कर दे। मगर सच पूछिए, ये सब कुछ यूँ हुआ कि मैंने अपने कभी गुमान में भी नहीं लाया था। आज सिद्रा की शादी मैंने अपने भांजे से कर दी है, जबकि मरियम मेरी पहली बीवी के साथ खुश असलूबी से रहती है, क्योंकि इस उम्र में शायद रकाबत जैसे जज्बे दिल में नहीं होते। इंसान सुकून से रह ले, यही बड़ी बात है।